एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। जंग की हीट सारी पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तानी सरजमीन पे जंग हो रही है। इस जंग को उठाइए और भारत की सरजमीन पे ले जाइए, ताकि उन्हें जंग की गर्मी का एहसास हो और उन्हें अंदाजा हो कि जंग की कीमत क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May, at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah, that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाए। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ऐश्वर्या खुलेआम नेता बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है। वो कह रहे हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। क्या और बोल रहे हैं बताइए। डरपोक है, भगौड़ा है, और यही है वो जो आपने कहा चाचू विस्की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। पाकिस्तान बद से बदतर हो गया है, पाकिस्तान बेहाल हो रहा है। उनके सांसद संसद में रो रहे हैं, प्रधानमंत्री को भगौड़ा कह रहे हैं, और उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसकी तो भी आप बात करेंगे। अब वो जो इतना लायक डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। देखो ऐश्वर्या, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। मैंने कभी अभी तक नहीं देखा है कि एक दिन पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके रोना शुरू करता है कि अल्लाह ताला हमें बचा दो, अल्लाह ताला हमें बचा दो। कल तस्वीरें मैंने दिखाई, और आज दूसरे दिन एक एमपी आके कहता है मेरा प्रधानमंत्री गीदड़ है, और किसी भी उनके from a third party. Clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US President is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should think this is typical Trump overreach? This is typical Trump overreach. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. And I think it becomes incumbent right now for the government to start the press conference which we were promised at 5:30. If this was a calibrated announcement, which I do not know anything about, then really we will hear, we will go, Republic will go by what our Prime Minister says. Republic will go by what the Foreign Secretary of India says and what the Indian forces says. It is wrong for Donald Trump to go out and make an announcement, but this is typical. And the fact that he's saying, and the fact, Arnav, he's saying that overnight negotiations, while we had the worst of fighting between the two sides. Where are the negotiations overnight? Where are the negotiations overnight? Who has mandated him to have those negotiations overnight? Last night we were pummeling them back after they tried to send their drones. Last night there were people in Firozpur who were injured. Last night there were 36 places where they tried to do incursions, and we have hit them back. And a ceasefire is not a phone call. It is not like one of those things that happen on WhatsApp. I mean, Donald Trump should get real about the situation. I will completely go by what my government says. And Trump has failed for the 5 months with Russia and Ukraine. But that's not the point. He has announced 4 times. Trump अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है। अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोलकर लोगों के अंदर नफरत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है, और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए,
लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। और जब आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको दर्ज किया जाएगा, आपका 56 इंच, आपकी सारी थ्योरी, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हुई हैं। और अब हालत यह है कि जो आपके भक्त हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार कैसा यह हमारा भगवान था जो अपनी एक भी बात पर खरा नहीं उतरा। आपके लिए विपक्ष मजाक है। या तो आप मन की बात करेंगे या संसद में तब बोलेंगे जब आपके बात बोलने वाला कोई ना हो, फालतू की बातें करेंगे, ताली बजवा लेंगे। और या चुनाव में खड़े होकर बोलेंगे, कभी बोलेंगे पंचर बनाता है, कभी बोलेंगे कपड़े देखकर पहचान लो, कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, कभी अखिलेश यादव का मजाक उड़ाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार इस पूरी लड़ाई में आपने सामने आकर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी उसी संसद में थे और उसी संसद में उन्होंने आपसे कहा था, 2022 में कहा था कि ये जो आप नीति बना रहे हैं ये आप चीन को भी दुश्मन बना लेंगे, चीन और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे, हमारे लिए 2 फ्रंट खुलने का खतरा रहेगा जो बेहद खतरनाक होगा। और उस समय मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने ड्रोन के बारे में बात की थी कि ड्रोन नई टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन रशिया के युद्ध में ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मजाक उड़ा दिया गया। इजराइल के साथ समझौता हो रहा था, इजराइल के हथियार आ रहे थे, अडानी जी का ठप्पा लग रहा था और सारा खेल चल रहा था। मजाक उड़ता है राहुल गांधी का। कोविड पे बोले तो मजाक उड़ाया, सब सही साबित हुआ। पाकिस्तान चीन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। ड्रोन पर राहुल गांधी ने बोला, सब सही साबित हुआ। मैं कभी नहीं कहता मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तो लगता है कि अगर आपकी जगह राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे होते तो शायद सारे सही फैसले लिए गए होते। और आज जिस तरह भारत की जनता के रूप में हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली स्थिति शुरू नहीं होती, वो वाली स्थिति आती नहीं। सवालों के जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने इस सवाल का जवाब दिया होता कि बैसरण घाटी जहां पर 2500 लोग थे वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। सवालों का जवाब आप देंगे नहीं, वरना आपने बताया होता कि जिन 4 आतंकवादियों की फोटो जारी की है हम मान लेते हैं वही 4 थे, कहां हैं वो। आपने तो आज तक यह भी नहीं बताया कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। आज तक पुलवामा की जांच में क्या निकला किसी को नहीं पता है। बातें बातें बातें, दूसरों का मजाक। मैं होता तो यह कर देता। एक पुराना वीडियो इनका चल रहा है बंबई की घटना के बाद का, उसमें कहते हैं काहे की बातचीत, कांग्रेस तो लव लेटर लिख रही है, सरकार लव लेटर लिख रही है। मैं होता तो यह कर देता, अरे लव लेटर में कम से कम लिखा हुआ दर्ज तो होता है रिकॉर्ड के लिए कि कल को उसका उल्लंघन ना हो सके। आप तो फ्लाइंग किस भेज रहे हैं महाराज, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देश की जनता को पता ही नहीं है कि सीज फायर में क्या तय हुआ, क्या शर्तें हैं। देश को पता ही नहीं है कि यह सीज फायर कैसे किया गया, क्यों किया गया। देश को पता ही नहीं है कि सीज फायर होने के तुरंत